My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, today's promise for the month is taken from Isaiah 33:17. इस महीने का प्रतिज्ञा वचन यशायाह 33:17 से लिया गया है। Your eyes will see the king in his beauty. तो अपने आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा। Maybe your eyes have seen only disappointments, discouragements and fear. शायद आपके आंख निराशा, डर और हताशा को देखा है, But now your eyes will see the king in his beauty. लेकिन अभी आपकी आंख राजा को उनकी शोभा के साथ देखेगी। This is a year of beautification. ये जो है खूबसूरत बनने की साल है। The Lord said, from the mud heap, I will make you into a palace of beauty. परमेश्वर कहते हैं, राख से मैं तुमको खूबसूरत राजमहल बना दूंगा। You will be raised from the ashes into a beautiful person. आप जो है राख से खूबसूरत इंसान बन जाएंगे। And for that, God is going to touch your eyes to make you see the King in all his beauty, for you to receive that beauty. इसलिए परमेश्वर आपकी आंखों को छुएंगे ताकि राजा को उनकी शोभा के साथ आप देखेंगे, ताकि आपका जीवन शोभायमान हो जाएगा। Every time Jesus has appeared to us, हर एक बार जब यीशु हमारे सामने प्रकट होते हैं, we have seen his beauty coming through his love, love, love. हम देखें उनकी प्रेम के माध्यम से उनकी खूबसूरती हमारे जीवन में उतर आती है। He is not a person with arrogance and pride and self-made glory as the king or the King of Kings. वो जो है ऐसा राजाओं का राजा नहीं है जिनके अंदर ढिठाई है, जिनके अंदर घमंड है, जिनके अंदर बस अपनी ही बातें होती है। But he is one who is so humble, so tender, so full of love. That's the beauty Jesus carries, my friend. मेरे मित्रों, प्रभु यीशु इस तरह का पुरुष है जो बहुत ही कोमल है, बहुत ही विनम्र है और बहुत ही बेहतरीन है। उस तरह का जीवन वो जिए है मेरे मित्रों। He understands you. वो आपको समझते हैं, He knows our weaknesses. वो हमारी कमजोरियों को जानते हैं, He knows our pain. हमारे दर्द को जानते हैं, He knows our loneliness. वो हमारे अकेलेपन को जानते हैं, He knows our disappointments. हमारे निराशाओं को जानते हैं, He knows our discouragements. वो हमारे हताशा को जानते हैं, Because he has gone through every one of them. क्योंकि हर एक बातों से वो खुद गुजर चुके हैं। And the Bible says in Isaiah 53:3, और बाइबल यशायाह 53:3 में ऐसा कहती है, he was marred, उनका चेहरा बिगड़ गया था and because of the wounds on his face was turned beyond recognition. उनके चेहरे में इतने घाव था, उनका चेहरा बिल्कुल पहचानने लायक नहीं था। Swollen and beaten and bruised. उनका चेहरा घाव से भर गया था, फूल गया था, बहुत ही उनको मार पड़ा था। There was no comeliness on his face, उनके चेहरे में कोई भी खूबसूरती था ही नहीं, for no sin of his. वो उनका कोई अपना गुनाह था ही नहीं। Just to understand the agony that your face carries even today. आज भी जो आपका चेहरा जो दर्द से गुजरता है, उसको समझने के लिए उनका जीवन ऐसा हुआ था। The face of Jesus was marred. यीशु का चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया था। So today, his face is not just the face of a wounded person on the cross, but a face of one who destroyed the power of death and rose up alive. आज उनका चेहरा उस घाव वाला शरीर का चेहरा नहीं है जो सलीब में है, लेकिन वो पुनरुत्थित होके जो है आज जिंदा परमेश्वर के रूप में जीवित है। His face is filled with the resurrection power, full of glory and life. उनका चेहरा जो है पुनरुत्थान की सामर्थ जो महिमामय है और जीवन से भरपूर है। And he says, I am the light of the world. वो कहते हैं, मैं ही जगत की ज्योति हूँ, And whoever walks after me और जो मेरे पीछे चलता है shall have the light of life. उनका जीवन ज्योति से परिपूर्ण हो जाएगा। All the darkness will be gone.
हर एक अंधेरा दूर चला जाएगा। Today, all the darkness in your face will be gone as He makes His face to shine upon you. आज आपके चेहरे से हर एक अंधेरा दूर हो जाएगा जब उनका चेहरा आपके ऊपर चमकने लगेगा। Oh, the face of Jesus, ओ यीशु का वो चेहरा full of love and understanding and compassion for you. जो आपके लिए प्रेम, समझ और जो है तरस से परिपूर्ण है। Oh, the face of Jesus, which has destroyed the power of death and fear and sorrow, and has the power of resurrection and life, which will bring life to you. प्रभु यीशु का चेहरा जो है जीवन से भरपूर है, आनंद से परिपूर्ण है, जो शैतान के सामर्थ को नष्ट कर दिया है। Today His face is shining upon you. आज उनका चेहरा आपके ऊपर चमक रहा है। His resurrection is coming into your life. उनका पुनरुत्थान आपके जीवन में उतर रहा है। And His love to heal your broken heart and to strengthen you to rise up is coming upon you. उनका प्रेम जो आपके टूटे हुए दिल को चंगा करेगा, उनका प्रेम आपके जीवन में उतर रहा है। Look at the face of Jesus, आप यीशु के चेहरे को और निहारें, the beautiful face. जो बड़ा खूबसूरत चेहरा है। And He is making your face beautiful. वो आपके चेहरे को खूबसूरत बना रहे हैं। All the sorrow, all the fear, all the pain in your face is leaving you right now. हर एक डर, हर एक दर्द, हर एक परेशानी आपके चेहरे को छोड़ के जा रहा है। Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of the world will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of the world will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes on the beautiful face of Jesus. आपकी आंखें यीशु के खूबसूरत चेहरे की ओर आप मोड़ ले। Let your eyes behold the beauty of the King. आपके चेहरा राजा की खूबसूरती को निहार ले। How can you behold the lovely face of Jesus? आप किस तरह से यीशु के खूबसूरत चेहरे को निहार सकते हैं? The Bible says in Hebrews 12:14, बाइबल इब्रानियों 12:14 में ऐसा कहती है, holiness, पवित्रता, holiness, पवित्रता, holiness, पवित्रता, without which no one will see the Lord. बिना पवित्रता का कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। Only the holiness in your eyes, holiness in your spirit, holiness in your body can make you see the Lord face to face. केवल आपकी आंखों की पवित्रता, आपकी शरीर की पवित्रता परमेश्वर को आपके सामने निहारने में आपको मदद करेगा। Today cry out to the Lord to cleanse your eyes. आज आप परमेश्वर को पुकारे ताकि वो आपकी आंख को शुद्ध कर डाले। As the eye is holy, eye is pure, the whole body becomes pure, says the scriptures. शास्त्र कहती है अगर आपकी आंख पवित्र हो जाएगी, आपका पूरा शरीर पवित्र हो जाएगा। The eye, as it has holiness, the whole body receives light, says the scriptures from the words of Jesus. प्रभु यीशु के वचन से शास्त्र ऐसा कहती है, अगर आपकी आंख पवित्र रहेगा, आपका पूरा शरीर ज्योति से परिपूर्ण हो जाएगा। Matthew 6:22-23. मत्ती 6 उसका 22 और 23 में ऐसा लिखा है, The eye is the lamp of the body. शरीर का दिया आंख है। If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. इसलिए यदि तेरा आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला हो जाएगा। But if your eyes are unhealthy or not holy,
your whole body will be full of darkness. लेकिन अगर आपकी आंख बुरी है और पवित्र नहीं है, आपका पूरा शरीर अंधकार से परिपूर्ण हो जाएगा। If then the light within you is darkness, how great will be the darkness in you. इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कितना बड़ा होगा। Do you say that your whole body, your whole life is full of darkness? क्या आप कहते हैं आपका पूरा जीवन, पूरा शरीर अंधकार से परिपूर्ण है? Cry out to Jesus and say, Lord, cleanse me with your blood and cleanse my eyes of all sins. आप प्रभु यीशु को पुकारे, प्रभु यीशु मेरी आंखों को साफ करे, मेरा पूरा शरीर को अपने लहू से आप पवित्र कर दे। I want to see your light. I want to see your beauty, Lord. मैं आपके ज्योति और आपकी खूबसूरती को देखना चाहता हूँ प्रभु। Cleanse me, मुझे शुद्ध करें, wash my eyes, मेरी आंखों को आप शुद्ध करें and remove all the lustful thoughts and the wicked thoughts. और सारे अभिलाषा का चिंता और दुष्टता की चिंता को हमारे मन से आप दूर करें। The Lord will bring His light of holiness in your eyes and in your mind. परमेश्वर आपके मन में और आपके आंख में जो ज्योति है, पवित्रता की ज्योति को लेके आएंगे। And you will only see the beauty of holiness from the King who will live in your heart. जो राजा आपके दिल में जिएंगे, उनकी खूबसूरती जो पवित्रता में है, सिर्फ आप वही देख पाएंगे। How does this darkness come in our eyes? हमारी आंखों में ये अंधकार कैसे आती है? According to Matthew 7:3, Jesus says, मत्ती 7:3 में यीशु कहते हैं, if you are finding fault and accusing your brother or sister all the time, then your eyes becomes filled with darkness. अगर तुम्हारे भाई और बहन के जीवन में सदा तुम दोष देखते हो, तब तुम्हारे आंखें जो है अंधकार से परिपूर्ण हो जाएगा। Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank, big wooden piece in your own eye? तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? Many times people all the time criticize others, condemn others, find fault with others without looking at their own weaknesses. कई बार लोग अपने जीवन को नहीं देखते हैं, लेकिन लोगों के जीवन में वो दोषारोप और जो है लगातार उनको तिरस्कार करते रहते हैं। The eyes of such people receive the darkness from the devil who hates the brethren and accuses the brethren, according to Revelation 12:10. प्रकाशित वाक्य 12:10 के अनुसार उन लोगों की आंख जो है शैतान के माध्यम से अंधकार से परिपूर्ण हो जाता है, जो दिन रात भाइयों के ऊपर दोषारोप करता रहता है। Today let us repent. आइए आज हम पश्चाताप करें। Say, Father, help me to love everyone and humble myself before others. ए पिता, मेरी मदद करे कि सबसे हम प्रेम करें और सबके सामने खुद को हम दीन कर लें। Help me to love you, Lord, unconditionally and keep my spirit humble and my eyes humble. पिता, बिना कोई वजह से मैं आपको प्रेम कर सकूं, मेरे जीवन को और मेरे नजरों को मैं दीन बनाते रहूं। The Bible says God hates the haughty eyes, pride-filled eyes. बाइबल कहती है हठी आंखें और घमंड से चूर आंखों से परमेश्वर को नफरत है। But today the Lord is willing to transform us, heal our eyes and make us see His beauty. लेकिन आज परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तन करने में चाहत रखते हैं, हमारे आंखों को चंगा करने का चाहत रखते हैं, ताकि हम उनकी खूबसूरती को देख लें, To become like Jesus. ताकि हम यीशु के रूप में परिवर्तित हो जाएं। I pray this grace upon all of us right now. मैं इसी वक्त ये अनुग्रह आने के लिए हम सबके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। Father, cleanse our eyes, Lord. पिता, हमारे आंखों को आप शुद्ध करें। Our eyes are the light to our body. हमारा आंख जो है शरीर के लिए ज्योति है। Today we pray together that every sin, every pride, every haughtiness, every lust shall leave the eyes in Jesus' name. हम प्रार्थना करते हैं हर एक पाप, हर एक घमंड, हर एक हठीला बात हमारे आंखों से यीशु के नाम से दूर हो जाए। Cleanse us with your blood अपने लहू से हमें आप शुद्ध करें and help us to see you, Lord Jesus, and help our life, our body to become beautiful.
हमारी मदद करे ताकि आपको हम देख ले, हमारा जीवन और हमारे शरीर जो है पवित्र बन जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से। When my father was passing away, जब मेरा पिताजी गुजरने वाले थे, he was in the ventilator. वो वेंटिलेटर में थे, Tubes were in his throat, in his nose, उनके नाक में, उनके गले में पूरा ट्यूब लगाया हुआ था। and he raised his hands as I stood by his side. जब मैं उनके करीब खड़ा था, वो अपने हाथ को उठाए। He said, "My hands are clean. उन्होंने कहा मेरा हाथ पवित्र है, My heart is clean. मेरा दिल साफ है, My life is clean. मेरा जीवन पवित्र है। I can stand before anyone and say, I have lived a clean life." मैं किसी के सामने खड़े होकर कह सकता हूँ मैं एक शुद्ध जीवन जिया हूँ। Then he said, "Thank you for the opportunity." उन्होंने कहा इस मौके के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। Amen. आमीन। Those were his last words. वही उनका अंतिम शब्द था। My friend, as we have this testimony, our eyes shall see the King in his beauty as we enter heaven. मेरे मित्रों, जब हमारे जीवन इस तरह की गवाही से परिपूर्ण हो, हम परमेश्वर को देखेंगे जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। And secondly, और दूसरी बात, our eyes shall see the beauty of the King when we go through much brokenheartedness in this world. इस जगत में जब बहुत ही टूटे हुए मन से गुजरते हैं, हमारा आंख परमेश्वर को देखेगा। In Psalm 34:18, भजन संहिता 34:18, the Bible says, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in the spirit." बाइबल कहती है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। Look at the woman Hagar in the Bible. बाइबल में हजीरा को आप देख लें। She was cast away by the family members. उनके परिवार के लोगों ने उनको घर से खदेड़ दिया था। She had to run with her child अपने बच्चे के साथ उनको घर से भागना पड़ा था and cried unto the Lord. और वो परमेश्वर को पुकार रही थी। But then the Lord appeared to her. लेकिन परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुए, Her eyes saw him. उनकी आंखें परमेश्वर को निहार लिया। And in Genesis 16:13 she says, और उत्पत्ति 16:13 में वो ऐसा कहती है, "You're the God who sees me. आप वो परमेश्वर है जो हमें देखते हैं। I have now seen the one who sees me." मैंने अभी उनको देख लिया है जो मुझे देखते हैं। God sees you as you are brokenhearted. जब आपका दिल टूटा हुआ रहता है, परमेश्वर आपको देख लेते हैं। In 2 Chronicles chapter 16 and verse 9, दूसरा इतिहास 16 उसका 9 में ऐसा लिखा है, the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him. यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता करने में अपना सामर्थ्य दिखाए। Your heart is fully committed to the Lord. आपका दिल पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर समर्पित है। The Lord's eyes, which is full of beauty, love and life, is upon you to raise you up from your brokenheartedness. परमेश्वर की आंख जो खूबसूरती प्रेम से परिपूर्ण है, आपके टूटे हुए जीवन से आपको उद्धार करने में सामर्थ्य है। The Lord saw Hagar and her tears. परमेश्वर ने हजीरा और उनके आंसू को देख लिया। And God came to her and raised her son to become a nation. परमेश्वर आए, उनके बेटे को उत्थित किया ताकि वो एक राष्ट्र बन जाए। The Lord sees you. परमेश्वर आपको निहारते हैं। Are you worried about your child? क्या आपके बेटे के लिए आप चिंतित हैं? God will raise your children to great heights. परमेश्वर आपके बच्चों को महान ऊंचाई तक लेके जाएंगे। God will give you children. परमेश्वर आपको संतान देंगे। God will build a home for you. परमेश्वर आपके लिए घर बनाएंगे। God will give you security and protection परमेश्वर आपके जीवन में सुरक्षा और स्थायित्व देंगे and honor and love. और प्रेम और आपको जो है आदर देंगे Raise you up. और आपको उत्थित करेंगे। Let not your heart be troubled. आपका दिल ना घबराए। Here's a beautiful testimony. यह एक बड़ा खूबसूरत गवाही है। Jairaj from Guwahati. भाई जयराज गुवाहाटी से है। It shows how the Lord appears even today and transforms lives. ये उसको दिखाता है आज परमेश्वर
आज प्रकट होते हैं और जीवन को कैसे बदल जाते हैं उसके बारे में। Listen to it, and I'll be back to pray for you. ये गवाही सुने, हम लौट के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मेरा नाम है सहाय रानी और मेरा जन्म कन्याकुमारी में हुआ। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरा नाम है जयराज क्लैटिस। साल 2000 में मेरा विवाह हुआ और उसके बाद साल 2008 में हम तूतुकुड़ी आए। तूतुकुड़ी में सीएसएफ में मैं नौकरी करता था। शादी के समय से ही वो शराब पीते थे, पर थोड़ा थोड़ा पीते थे। पर तूतुकुड़ी आने के बाद वहाँ कुछ ऐसे दोस्तों के बीच फंस गए जहाँ पर वो लगातार शराब पीने लग गए। लगभग 15 साल 20 साल तक मैं शराब का आदी था, लेकिन साल 2009 के दौरान मेरे शराब की आदत के कारण मेरा पूरा परिवार लगभग बर्बाद हो गया था। और इसी तरह नशे के बीच में मैंने वहाँ के ऑफिसर से झगड़ा कर लिया और उसके बाद मैं नागरकोइल अपनी पत्नी के पास चला गया। उस झगड़े के कारण मेरी नौकरी चली गई थी। किराए के घर में रहते थे। जितने भी पैसे बचाए थे उसी से घर का गुजारा होता। धीरे धीरे करके पैसे खत्म हो रहे थे और परिवार में बहुत बड़ी आर्थिक समस्या थी। बच्चों की स्कूल की फीस भरनी होती थी। स्थिति ऐसी थी कि 1 किलो चावल भी हम नहीं खरीद पाते। मैं तो नौकरी पर नहीं जाती थी। मेरे पति भी बीच बीच में किसी राजमिस्त्री के काम पर ही जाते। हम लोग बहुत ही उदास थे क्योंकि इनकी अच्छी नौकरी चली गई थी। उन्हीं दिनों में हम लोग सुबह 6 बजे जीसस कॉल्स के कार्यक्रम को देखा करते थे और हमने ये सोचा कि क्यों ना हम भी प्रार्थना करना शुरू कर दें। और उसके बाद हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसमें ब्रदर पॉल दिनकरन बात कर रहे थे। जैसे ही हमने टीवी ऑन किया, उन्होंने कहा, हे पिता, इस समय आपकी ज्योति इन पर चमक रही है, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा उतर रही है। जिन्हें नौकरी नहीं है उन्हें अच्छी नौकरी मिलने के लिए आपका जीवन उनमें उतर रहा है। उसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आशीष बनी रहे और छुटकारा हो जाए। नौकरी छूटे हुए लगभग 5 महीने हुए होंगे, पर ठीक उसी दिन लगभग 11 बजे उनकी माँ का फोन आया, मतलब मेरी सासू माँ का, और उन्होंने कहा कि नौकरी का ऑर्डर लेटर आया है, तुम्हें दोबारा ज्वाइन करने के लिए कहा है। उस समय हमें बहुत खुशी हुई। जैसे भाई ने कहा उसी तरह हुआ। अब प्रभु यीशु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। इससे मन में परिपूर्ण आनंद भर गया था। फिर हम लोग उसी स्थान पर लगभग 1.5 साल रहे। फिर हम लोग जीसस कॉल्स में पारिवारिक सहभागी के रूप में जुड़ गए थे और उनके साथ संपर्क बना रहा। वो आकर प्रार्थना भी करते थे। जीसस कॉल्स जाने के बाद भी मैंने शराब पीना बंद नहीं किया और जब मैं जीसस कॉल्स जाता था तब इनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना भी की गई। उस समय मेरी आंखों के आगे दुख उठाए हुए यीशु, खून से लथपथ यीशु, उनका मेरी आंखों के सामने दर्शन मिला मुझे। पर मैंने उस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बाद में पता चला कि दुख उठाए यीशु को देखने के बाद मैंने उस बात को अहमियत नहीं दी। मैं अपनी पत्नी से अक्सर ये बात कहा करता था कि मैंने दुख उठाए यीशु को अपनी आंखों के सामने देखा। मुझे वो सौभाग्य मिला था। वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वो क्रूस पर लटके थे, पूरे शरीर से खून बह रहा था, ऐसा एक दर्शन मिला। ठीक मैंने आंखों के आगे प्रत्यक्ष रूप में जैसे कोई आकर बात करता है उसी तरह मैंने उन्हें देखा है। प्रत्यक्ष रूप में मुझे उनका दर्शन मिला है। एक खूबसूरत चेहरे से जब खून बहता है उसी तरह से मैंने वो दर्शन देखा। जीसस कॉल्स के अंदर मैंने देखा, तो वो जीसस कॉल्स के अंदर मुझे एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखा था, पर मैंने अपनी पत्नी को ही इसके बारे में बताया था। आज उस बात को जीसस कॉल्स के जरिए मुझे रखने दिया, उसके लिए धन्यवाद और उसके लिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद। अब हम लोग बहुत ही खुश हैं। हमारे बच्चे सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं। प्रभु में हम लोग सभी बहुत खुश हैं। रोजाना प्रार्थना करते हैं। जीसस कॉल्स के सभी कार्यक्रम भी देखते हैं। 20 साल, लगभग 20 साल मैं शराब के आदी था और उस तरह के एक जीवन से छुटकारा पाकर मुझे एक पवित्र जीवन प्रदान करने के लिए परमेश्वर और भाई पॉल दिनकरन को लाख लाख धन्यवाद। उनके परिवार के लिए हम रोजाना ही प्रार्थना करते हैं। जैसे वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। Father, I pray for this, thy dear son, thy dear daughter. पिता आपके प्यारा बेटा, प्यारी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। See their brokenheartedness. उनके टूटे हुए दिल को आप देख लें। See their loneliness. उनके अकेलापन को देख लें। See their forsakenness. उनके त्यागे हुए जीवन को देख लें। See their helplessness. उनके मजबूरी वाले जीवन को देख लें। You are seeing them. आप उनको देख रहे हैं। O Lord, appear to them in the beauty of the King. पिता राजा की खूबसूरती के माध्यम से उनके सामने आप प्रकट हो जाएं। As the King of Kings, Lord Jesus, deliver them today. राजाओं के राजा के रूप में प्रभु यीशु आज आप उनको छुटकारा दें। Let there be deliverance from all the addictions.
हर एक नशा से उनको आप आजाद करें In Jesus' name. यीशु के नाम से। Let everything of the devil, everything of the world leave in Jesus' name. शैतान की बातें, दुनिया के बातें यीशु के नाम से उनको छोड़ के चला जाए। Let every member of the family be transformed and cleansed in Jesus' name. उनके परिवार के हर एक लोग परिवर्तित हो जाए और प्रभु यीशु के नाम से शुद्ध हो जाए। Remove their loneliness, Lord. उनके अकेलापन को आप दूर करें प्रभु। Provide everything that they need. उनके हर एक जरूरत को आप पूरा करें। Build a home for them, Lord. उनके लिए घर बनाएं आप प्रभु। Please listen to this little prayer, but do a mighty work immediately for them, Lord. कृपया हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुन के तुरंत उनके जीवन में एक अद्भुत काम करें। Provide the finances आर्थिक बातों को आप लाएं। and bless their children with an excellent future in Jesus' name. यीशु के नाम से उनके बच्चों को सुनहरा भविष्य प्रदान करें। Let them rise up with wisdom and provision to levels of authority in the nation in Jesus' name. यीशु के नाम से देश के अधिकार के स्थान में ज्ञान और बुद्धि के साथ वो स्थापित हो जाएं। Let the children be filled with the Holy Spirit and let them prophesy in Jesus' name. यीशु के नाम से बच्चे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर भविष्यवाणी करने लगे। Provide for our brothers and sisters to provide for their children. हमारे भाइयों और बहनों को आप मुहैया कराएं ताकि अपनी बच्चों की मदद तो कर सकें। Let every blessing come in search of them in Jesus' name. यीशु के नाम से हर एक आशीष उनको खोजते हुए आए। And those who need healing, heal, Master, by your power. जिनको चंगाई की आवश्यकता है प्रभु अपने सामर्थ्य से उनको आप चंगा करें। Those who do not have finances, give them a job or build their business in Jesus' name. जिनको आर्थिक आशीष नहीं है उनको एक नौकरी दे और उनके व्यवसाय यीशु के नाम से आप स्थापित करें। Let there be blessings from your holy hands, O Lord. प्रभु आपके पवित्र हाथ से उनके जीवन में आशीष उतर आए। Let everything become beautiful in their lives. उनके जीवन में सब कुछ बड़ा खूबसूरत बन जाए। Thank you for thy blessings. धन्यवाद आपके आशीष के लिए। Thank you for your love. आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for thy life. आपके जीवन के लिए आपका धन्यवाद। Thank you because it's coming upon your children. धन्यवाद आपके बच्चों के जीवन में उतर रहा है। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।